Hello students. Last class, if you remember, we were discussing about the non-cooperation movement, and we have seen that non-cooperation movement has been withdrawn by Gandhi after the Chauri Chaura incident. Now, the next mass movement that was started by Gandhi was the civil disobedience movement, and the period of civil disobedience movement has been taken roughly from 1930 to 1934. Now, but after the withdrawal of non-cooperation movement and to starting of civil disobedience movement, there was a gap of a number of years. Now we are going to discuss the happenings, the events had taken place during that period of time, because the incidents, the developments that had been taken place in India during that particular period of time had ultimately paved the path for the beginning of the civil disobedience movement. In other words, we are going to examine, we are going to identify the causes of the civil disobedience movement. Causes. In examination, the question is one of asking that why did Gandhi start the non-cooperation movement? So today we are going to discuss on that particular topic. So from 1920 to 1930 there was a period of gap. There was such kind of political vacuum. What does political vacuum means? It was the period when Congress was not going to launch any other mass movement. After the withdrawal of the non-cooperation movement, there was a political vacuum. It seems that no leader was there to take the people of India towards the freedom movement. It seems to that now the Indian freedom movement was going to be over. So there was an atmosphere of disappointment. People were very much sad. They felt that British government or British rule from India can't be uprooted. During the period of non-cooperation, there was an atmosphere of enthusiasm. People were participated in the movement with great enthusiasm. They felt that it is a time to show the unity of Indians and uproot the British rule, to strike the British rule, to grant more and more freedom. Quest for Swaraj was there. But after the withdrawal of the non-cooperation movement, nothing was there to become happy. Indians were very much disappointed. So in that particular atmosphere, all were just looking towards each other, what will happen next. So in that particular period of time, from 1920 to 1930, there were a number of incidents had taken place that had prepared the path for the beginning of the civil disobedience movement. So this is very much important to know the causes. So we will investigate about the causes. One more thing that you have to remember, this was the period of time when Gandhi was also arrested. After the withdrawal of the non-cooperation, Gandhi had been arrested and he released in February 1924. You may ask the question, sir, when the Gandhi had been released, why did Gandhi not launch the movement? Why Congress has not started any other movement? If you remember, I have explained that after the withdrawal of non-cooperation movement, Gandhi was not in the active politics. Rather, Gandhi was busy in constructive work. What is the meaning of constructive work? Gandhi was just busy
or just started a series of constructive work such as upliftment of Dalits, such as empowerment of women, fight against untouchability, promotion of Khadi. These were the constructive programs, for which Gandhi had just involved himself and took Congress in that particular phase. What was the objective about this constructive work? It is very, very important. These constructive works were started by Gandhi in accordance with the strengthening the civil disobedience movement or any other mass movement. Actually, Gandhi was just preparing for another mass movement. But during the non-corporation movement, he experienced a number of limitations of the non-corporation movement, or you may say the limitations of the non-corporation movement. What was those limitations? Those limitations were, number one, due to the casteism, due to the practice of untouchability, so-called untouchables, the group of untouchables, were aloof from the freedom struggle. Number two, participation of women were very, very less. One more significant thing that Gandhi has realized that limits the movement, it was the Hindu-Muslim unity. On and off it, in different pockets of India, on a number of occasions, communal tension had developed. It was one of the major obstacles for uniting the freedom struggle. These were the dimensions of constructive work. So Gandhi had realized these were the weaknesses. So now, after coming out from jail, he just started a series of constructive works to just overcome the weaknesses that he felt during the non-cooperation movement. No one was imagining, no one was knowing that why Gandhi was doing this. Actually, Gandhi was doing for beginning of another mass movement, that was the civil disobedience movement. One more thing that we would also remember, as a part of that constructive work, Gandhi had also included promotion of Khadi. Gandhi had find out a unique solution to make India self-reliance, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी ने एक नई युक्ति, एक नई विचार को जन्म दिया और काफी महत्वपूर्ण विचार है। दैट वाज प्रमोशन ऑफ खादी। इस प्रमोशन ऑफ खादी का ऑब्जेक्टिव क्या था? याद कीजिए, ड्यूरिंग दी स्वदेशी बाइकॉट, तो बाइकॉट कर रहे हैं फॉरेन क्लोथ्स को, तो उसके जगह पे क्या लेना होगा? ऑल्टरनेटिव। तो खादी क्लोथ्स को प्रमोट किया, लेकिन खादी वाज फाउंड कॉस्टली। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और हमारे पास मिले नहीं थी। तो गांधी हैड सजेस्टेड टू जस्ट spun yarn for khadi. It was made mandatory for every congressman. The member of Congress had to produce khadi yarn and had to wear khadi cloth only. Gandhi was looking that if we produce sufficient amount of khadi, then the khadi clothes price will be fell down, and this also give means of livelihood to
villagers also, especially in the rural part. Weavers will get benefit. That strengthen the village economy. So charkha and khadi became the symbol of self-reliance and symbol of freedom, etc. We will discuss this thing later on in detail, but you have to remember about this constructive work of Gandhi. Now, one more dimension there. As I have told you, there was a political vacuum. But in reality, Congress was trying to find out some sorts of leadership. Within the Congress, there were some leaders who were just discussing this issue and trying to fill that political vacuum. C.R. Das, Motilal Nehru, these were the two great dignitaries, including some other leaders. They were trying to overcome such situation so that the head of Indians, their enthusiasm, their confidence must be kept up. They should not be disappointed and feel that British rule cannot be uprooted. These leaders were having their own limitations. They were working within the Congress, and mostly Congress was just but not in such an approach to start any other mass movement. तो what happened? इस पीरियड में तीन लीडर्स जिनका नाम मैंने नाम बताया आपको, पंडित मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं। इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई जिसको हम कहते हैं द स्वराज पार्टी। क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी। इसकी चर्चा मैंने की थी आपसे। ये है स्वराज पार्टी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके विषय में आपको जिक्र किया था पिछले क्लास में। तो स्वराज पार्टी का क्या कॉन्सेप्ट था? नेक्स्ट हम इसी स्वराज पार्टी के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे स्वराज पार्टी ने एक इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने का काम किया, भारतीयों के जोश को, स्वतंत्रता के प्रति उनकी चाहत को, उनके उत्साह को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस टॉपिक से ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क के विषय बताया, तो आपको जो सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स है गांधी के, वो आपको याद रखने की जरूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी एंड देन आफ्टर द few details of that constructive work that had started by Gandhi. Now students, we have just discussed about the Swaraj Party and here the description of Swaraj Party. So Swaraj Party actually founded in 1922. So just remember, नॉन-कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिस ईयर में समाप्त हो रही है, विड्रॉ की गांधी ने, उसी ईयर में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना तो हुई, लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो शुरू हुई वो फंक्शनिंग 1923 में शुरू हुई। 1922 में इन दी गया सेशन ऑफ कांग्रेस headed by C.R. Das, in that particular session of Congress, the Swarajists, the followers of Swaraji party were called Swarajists. They had approached Congress to get approval for their policies.
What was their policies? Their policies were Aranga Dalo and participating in the council elections. अब समझते हैं. With that particular proposal, when the Swarajist approaches in the Gaya session of Congress in 1922, Congress rejected their proposal. Means Congress had not allowed Swarajists to start their functioning, their movement. Now, why? You may ask the question, why? What was the problem? Why? They had not been permitted. They were also talking about the freedom struggle. They were trying their level best. Reason was, within the Congress, there were two groups of leaders. One were called pro-changers and one were called no-changers. What I have said, pro-changers and no-changers. Swarajists, the followers of Swaraj Party, were called, they are called pro-changers. Pro-changers means परिवर्तन चाहने वाले. और there was one other group, they were called no changers. ये no changers कौन थे? Those who were following the policy of non-cooperation. Even though non-cooperation movement had been withdrawn by Gandhi, but Congress was still following the policy of non-cooperation. असहयोग की नीति अभी भी कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से कांग्रेस अभी भी नॉन कॉपरेशन को ही फॉलो कर रही थी. और नॉन कॉपरेशन का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज और गुड्स को बाइकॉट करना. तो कौन से इलेक्शन में भाग लेना, यानी जो विधानसभाएं आप समझ लीजिए जो वहां होती थी उसमें भाग लेना, चुनाव में भाग लेना, एक प्रकार से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग करना है, उनकी व्यवस्था से सहयोग करना है. तो देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ कांग्रेसमैन who were still following the policy of non-cooperation. Actually, they were following the Gandhi. So they were called no changers, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे. तो no changers means those who were still following the idea of non-cooperation within the Congress and following the Gandhian path of non-cooperation, they were called no changers. And pro-changers, those who were demanding change in the Gandhian policy of non-cooperation. What was the change they were demanding? They were asking, they were just trying to contest council election. तो council election क्यों लड़ना चाहते थे? क्या वो चुनाव लड़के नेता बनकर के मौज मनाना चाहते थे? सुख का जीवन बिताना चाहते थे? या गाड़ी बंगला ऐश्वर्य चाहते थे? नहीं. Actually, their approach was different. They were trying to contest council election, and after winning the council elections, once they become the member of council, means once they entered into the council, they would expose the British policies within the Congress. जो अंग्रेजी सरकार नए नए नियमों को, कानून को भारतीयों के लिए बनाना चाहती है, भारत में लागू करना चाहती है, वो सारी पॉलिसीज सबसे पहले उन काउंसिल्स में डिस्कस होती है. जैसे आज की संसद की बात करते हैं, तो यहां उनका उद्देश्य था कि यहां पे वो उस काउंसिल के अंदर उसके मेंबर बनके सरकार की दमनकारी कानूनों का विरोध करें. ट्राइंग टू एक्सपोज the true nature of the British unjust rule. They were also trying to create hurdle in front of the government so that government could not do anything that goes against the interest of the Indians. It was their attempt, and they got some sort of success too. तो कौन से इलेक्शन में भाग लेने की बात हुई थी, और यहां जो मैंने लिखा अरंगा डालो, मतलब क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल. कानून लाया जाए, विधानसभा में जाएगी यानी काउंसिल्स में जाएगी, वहां ये
उस पर बहस करेंगे, वहां ये उसके विरोध में अपनी बातें रखेंगे। ये सबको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, क्यों विरोध हो रहा है। वहां पे उन कानूनों की कमियां निकालेंगे ताकि हिंदुस्तान के जनमानस को पता चले कि ये जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीयों का कभी भी हित नहीं चाहती, वो उसका शोषण करना चाहती है। ये उनके अपने मेथड्स हैं, इसीलिए यहां था अरंगा डाला, यानी कि उसको पास नहीं होने देंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत बात, 1923 के दिल्ली स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, आई रिपीट, इन 1923 in its special session held at Delhi, Congress committee had approved the policies of Swaraj Party, and then after Swaraj Party had started their functioning officially. One more thing, even though Swarajists were having some sorts of differences with the no changers, with the followers of the Gandhi, but still they were allowed and they were functioning within the Congress. ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी से ये अलग हो गए। देखिए एक बड़ी खूबसूरत चीज है उस समय की। आज के वर्तमान समय में क्या है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर एक नई विचार पनपती है तो वो पार्टी में टूट हो जाती है। उस अलग विचारधारा की बात करने वाले लोगों को, अलग कार्यक्रम की बात करने वाले लोगों को पार्टी खुद से अलग कर देती है, उसे मानने से इनकार कर देती है। मींस पार्टी के अंदर वो टॉलरेंस नहीं होती। बट कांग्रेस के अंदर यहां पर क्या है कि स्वराजिस्ट गांधी के दिखाए गए मार्ग यानी नॉन कॉपरेशन के अलग बात कर रहे हैं, उनसे कुछ इतर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तो काउंसिल इलेक्शन भाग लेंगे, लेकिन मोटिव क्या उनका? उनका भी मोटिव वही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, उनकी नीतियों का विरोध करना और हिंदुस्तानियों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों की प्राप्ति। तो ये विद इन द कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं। सो ऑन दैट टाइम द पॉलिटिक्स वाज हैविंग सच काइंड ऑफ टॉलरेंस लेवल कि गांधी जैसे नेताओं के दिखाए गए रास्ते के विरुद्ध भी अगर एक सोच है तो उसको भी कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है। एंड देन आफ्टर द स्वराज पार्टी हैज स्टार्टेड देयर पॉलिसीज, और जब 1923 के इलेक्शन में ये भाग लेते हैं दे गॉट अ वेरी गुड सक्सेस, और वंस दे बिकम द पार्ट ऑफ द काउंसिल्स, उन्होंने अंग्रेजी नीतियों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। व्हेनेवर गवर्नमेंट इज कमिंग विद द न्यू प्रपोजल्स दे वर इज एक्सपोजिंग, और नंबर ऑफ ओकेजन उन्होंने काउंसिल के अंदर उन कानूनों को पास होने भी नहीं दिया, गवर्नमेंट को उन्होंने परेशान कर दिया। और नंबर ऑफ ओकेजन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इससे क्या? इससे उन्होंने अपने लिमिटेशंस में, यहां भी देखिए नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लिमिटेशंस में, उस एटमॉस्फेयर में जब हिंदुस्तान के अंदर निराशा का माहौल है, नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, वहां पे उन्होंने भारतीयों के सर को ऊंचा रखने का प्रयास किया, उनके आत्मविश्वास को, उनके आत्मबल को, उनकी आजादी की लड़ाई के जज्बे को जिंदा रखने की कोशिश की। ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये वो पीरियड है जब चारों तरफ घोर अंधेरा हो, यानी हिंदुस्तान की लड़ाई आजादी की लगभग लग रही थी कि मृत्यु प्राय हो जाएगी। उस पीरियड में इन्होंने अपने प्रयासों से उस उत्साह को बनाए रखा। ये वैसे ही है जैसे घनघोर अंधेरे में एक दीपक टिमटिमाना शुरू करता है, एक दीपक की चमक उस घोर अंधकार को दूर करने के प्रयास करती है और वो प्रकाशित कर देती है, लड़ाई लड़ने की ताकत देती है। यहां भी इन्होंने यही किया। तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछे क्या जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से? या तो 1 नंबर के प्रश्न या फिर 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का प्रकार क्या होगा? नेम दी prominent leaders of Swaraj Party, C.R. Das and पंडित मोतीलाल नेहरू, 2 dignitaries। नेक्स्ट पूछे जाएंगे आपसे डिस्क्राइब और स्टेट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वराज पार्टी
डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्वराज पार्टी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये पूरा लिखना होगा, बताना पड़ेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूशन को। ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से हम लोग ये क्लियर करते हैं कि ये स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण आयाम, जो भारतीय आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां पे एक तरफ गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क में है, जहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम है, यहां वो आकर के एक्टिवली इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इस मूवमेंट का फिर क्या हुआ, इस पार्टी का क्या, इस पार्टी के साथ क्या हुआ, समझते हैं। C.R. Das had died in 1923 itself, and Pandit Motilal Nehru was become the president of the Central Legislative Council, जैसे हम लोग कहते हैं संसद के अध्यक्ष, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष। तो 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू became the president of the Central Legislative Council। अब देखिए, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। C.R. दास की टिकट कट गई, वो चले गए। अब अकेले बचे पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू had also accepted the chairmanship of Central Legislative Council. Now, once he became the chairperson of Central Legislative Council, he cannot lead the Swaraj Party. और प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के बाद वो एक प्रकार से गवर्नमेंट की ही एक फंक्शनिंग में शामिल हो गए। तो स्वराज पार्टी की फंक्शनिंग यहां से घटने लगी और स्वराज पार्टी धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली गई। गौर करेंगे, स्वराज पार्टी बैकग्राउंड में जा रही है और दूसरी तरफ गांधी फिर से उस कंस्ट्रक्टिव वर्क को साथ लेकर के पॉलिटिकल एरिना में आना शुरू कर चुके हैं। गौर कीजिए, बैलेंस, एक तरफ स्वराज पार्टी जिसमें फंक्शनिंग कर रही है, गांधी गांवों में है, बिल्कुल ओझल हो चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स। अब गांधी उधर से खुद को भारतीय आजादी की लड़ाई के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को फिर से नए सिरे से तैयार किया उन्होंने मास मोबिलाइजेशन के लिए, और अब वो फिर से एक्टिवली आ रहे हैं। तो स्वराज पार्टी धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही है। तो C.R. दास की डेथ और पंडित मोतीलाल नेहरू के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन होने के साथ ही स्वराज पार्टी की एक्टिविटी मिनिमाइज होने लगी, घटने लगी, इनका इन्फ्लुएंस घटने लगा और गांधीयन मूवमेंट फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में आने लगी। तो ये आपको याद रखना है इनका इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क को, जो कुछ हम लोगों ने अभी कुछ डिस्क्रिप्शन के रूप में पढ़े हैं, अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क। स्टूडेंट्स, we have just seen about the constructive work of Gandhi. So now I am listing those work in detail. You just go through these things. Even though the questions are not going to be asked from this particular topic in your examination, but it is very much important to understand the nature of Gandhian movement and the freedom struggle of India, because this constructive work has played a very important role, a significant role, as it prepared the pathway for the mass movement. It also contributed a lot in the freedom struggle, as it also worked as a means of unity for Indians and emergence of Congress as a party of Indians. So now see about the promotion of Gandhi. As I have said, one of the important constructive work that Gandhi has started was the promotion of Khadi. तो खादी क्यों? मैंने क्या कहा कि खादी को इसलिए प्रमोट किया कि एक तरफ हम बाइकआउट कर रहे हैं विदेशी कपड़ों का, तो भारतीयों को कपड़े चाहिए और ये एक प्रकार से मीन्स ऑफ लिवलीहुड भी होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, हर घर घर में गांव में वीवर्स का लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी आमदनी होगी। यदि हम खादी के कपड़े पहनना शुरू करेंगे तो खादी की डिमांड बढ़ेगी, तो वीवर्स को, बुनकरों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी अच्छी होगी, तो रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी और एक तरफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी हम एक धक्का लगा पाएंगे, क्योंकि उनका बेसिक इंटरेस्ट यहाँ पे
पैसा कमाना। तो इसके साथ क्या हुआ, गांवों की आत्मनिर्भरता। तो खादी से कई शिकार वो कर रहे थे, खादी और चरखे के। एक तरफ अंग्रेजी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर करना, और इंडियंस के इकोनॉमी को, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनाना, यानी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी गांव आत्मनिर्भर बने, वो अपनी आजीविका अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। इसीलिए गांधी ने चरखे और खादी के ऊपर बहुत एम्फसाइज, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक मेंबर के लिए आवश्यक था कि वो खादी के कपड़े ही पहनेंगे, और साथ में हर मेंबर को प्रति वर्ष 2000 यार्ड्स खादी यार्न बुनने थे, यानी बनाने थे चरखे पे। यानी चरखा चलाना प्रत्येक कांग्रेसमैन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इसके साथ साथ पूरे देश में उन्होंने खादी और चरखे को प्रमोट किया। उसका उद्देश्य क्या था, मीन्स ऑफ लिवलीहुड को देना, ताकि जो उनकी आर्थिक स्थिति अंग्रेजी शासन के कारण खराब हो चुकी है, वो उससे लड़ सके, वो उससे बाहर आ सके। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, सी कंसिडर खादी एज द की टू द लिबरेशन ऑफ द पीपल, पुअर पीपल फ्रॉम देयर माइजरी। गरीबों को उनकी आर्थिक दुर्व्यवस्था से निकालने का ये एक आधार हो सकता था। It provided means of livelihood to millions of people and enabled spreading the message of the freedom struggle to every part of country, particularly to the rural areas. यानी रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना, वहां के अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करना, उनकी मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिलेगी, उनको अच्छी आमदनी मिलेगी, और ये खादी के साथ उनकी भावनाओं को जोड़ना कहां, आजादी की लड़ाई के साथ। फिर देखिए, इट ब्रॉट द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री क्लोज टू कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस आजादी की लड़ाई को कर रही है, कांग्रेस गांवों में बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, उनके हितों की बात कर रही है। तो एक बुनकर की अगर तरक्की होती है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, तो पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो एक प्रकार से गांधी अपनी मूवमेंट को गांवों तक ले जा रहे हैं, अलग अलग रूप में। कंस्ट्रक्टिव वर्क में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उन्होंने नॉन प्रोफेशनल मूवमेंट के समय में उस मूवमेंट के लिमिटेशंस को देखी, व्हाटएवर लिमिटेशंस, व्हाटएवर ड्रॉबैक्स ही जस्ट कंक्लूडेड, he had worked during that period between non-profession and the civil disobedience movement. तो खादी प्रमोशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बाद में क्या हुआ कि ये चरखा और खादी क्या बन गई, became the symbol of self reliance, यानी आत्मनिर्भरता की और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि खादी का क्या रोल है। कई बार आपको लगता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा कि लोग खादी के कपड़े पहन करके आते हैं, क्यों? उसके पीछे यही उद्देश्य है कि खादी के प्रमोशन को करना, यानी कि वो सिंबल है हमारी आजादी की लड़ाई के साथ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गांधी की कंस्ट्रक्टिव वर्क किस आयाम में, तो अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा ये कदम होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम was the fight against untouchability. Do you know what is the meaning of untouchability? हिंदी में इसको कहते हैं छुआ छूत। यानी हमारे भारतीय समाज में एक इविल प्रैक्टिस थी, वो थी कि जिन्हें हम नीची जाति का मानते हैं, छोटी जाति का मानते हैं, उनसे हम एक दूरी बना के रखते हैं, उनका छुआ हम नहीं खाते, उनके साथ हमारा अगर संपर्क हो जाए किसी प्रकार से तो अपने आप को हम अपवित्र मानने लगते हैं। इन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, स्कूलों के लिए तो इनके लिए दरवाजे बंद थे, गांवों के अंदर इनके कुएं अलग होते थे, इनका मोहल्ला अलग होता था, नदियों के किनारे भी, घाट भी अलग होते थे जहां वहीं पे जा सकते थे, एक निश्चित इलाके में ये घूमते थे। इवन ये भी परंपरा थी कि ये जब गांवों में इंटर करते थे, शहरों में इंटर करते थे, तो अपने साथ एक लाठी रखते थे जो बजाते चलते थे, इसमें घुंघरू लगा होता था, आवाज से लोग समझते थे कि कोई दलित आ रहा है, कोई अछूत आ रहा है। ऐसे वर्णन है, ऐसे प्रैक्टिस थी। तो ये अनटचेबिलिटी एक गंभीर
सामाजिक बुराई के रूप में भारतीय समाज में व्यक्त थी। ड्यूरिंग द नॉन प्रोफेशन मूवमेंट गांधी रियलाइज्ड कि ये जो वर्ग है ये समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल समाज के निचले स्तर पे है। ये भारत की आजादी के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। उस लड़ाई में इसकी योगदान बिल्कुल शून्य है। और भारत की आजादी की मजबूती के लिए, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि समाज का प्रत्येक अंग, समाज का प्रत्येक समुदाय इसके साथ खड़ा हो। तो गांधी ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। इसके व्यक्तिगत, गांधी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को आप समझ सकते हैं। टू अपलिफ्ट these people, these downtrodden people, Gandhi regarded them, Gandhi called them Harijan, means children of God. Or Gandhi was trying to convince the upper caste people that they should consider, they should accept they are also unlike us. They are also a human being. Gandhi regarded the practice of untouchability as a sin. Sin means पाप। किसके खिलाफ? मानवता के खिलाफ। और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी ने गांवों के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसको याद रखना, ये सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट वर द एफर्ट्स मेड बाय गांधी टू अपलिफ्ट दलित्स इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी मुद्दे पे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। अंबेडकर और गांधी के बीच क्लैश होंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसलिए ये चीज याद रखनी है। तो गांधी ने क्या किया? Abolition of untouchability is important for removing, Gandhi feeling that कि abolition of untouchability is important for removing the worst evil from Indian society. समाज में, भारतीय समाज की सबसे गंभीर बुराइयों में से एक बुराई है ये, इसे दूर करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? ताकि हम इनको फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ सके, उनकी अपलिफ्टमेंट भी हो और फ्रीडम स्ट्रगल से इनको जोड़ सके। Organized satyagraha. Gandhi had organized a number of satyagraha. For what? To secure their entry into temples. किसकी entry? दलितों की entry. जिसे समाज अपवित्र मानता है, अछूत मानता है, उसे मंदिर में भी घुसने की अनुमति नहीं थी। It was the practice that if a Dalit entered into a temple, the temple become अपवित्र। That was the concept. भगवान अपवित्र हो जाएंगे। और इस प्रकार के किसी भी प्रयास को समाज के द्वारा बहुत कठोरता से दबाया जाता था। ऐसी घटनाएं हुई कि किसी दलित ने मंदिर में कदम रख दिए तो उस दलित की बुरी तरीके से पिटाई होती थी, बेरहमी से पिटाई होती थी। कुएं, गांव में कुएं पानी भरने की अलग, वो दलितों का। थोड़ी सी चीजों को मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। शायद आपने सुना होगा अपने आसपास मोहल्ले में कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मोहल्ले के नाम से नाम होता है। जैसे आपने गांव में बहुत कुछ ये है, जैसे चमर टोली, यानी वहां पे कॉपलेट सोसाइटी के लोग रहते हैं, तो वो पूरा इलाका उनके लिए। उसी प्रकार से शब्दों का चयन होता है। मेहतर टोली, यानी जो भंगी है, जो स्वीपर्स है, उनकी वो समुदाय वहां पे बड़ी संख्या में बसते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उन्हें समाज के बाकी वर्गों के साथ हिलने मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे और इसी को गांधी तोड़ने का प्रयास करते। उन्होंने कई इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सत्याग्रह किया। किसके लिए? टेंपल एंट्री के लिए, एक्सेस टू पब्लिक वेल। उनको कुओं की पहुंच, कुओं से पानी लाने की, हर कुएं के लिए उनकी पहुंच हो सके। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कुआं ही उनके लिए हो। उसी प्रकार से टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, स्कूल में एंट्री के लिए। इवन रोड्स की मैं बात कर रहा हूं, पर आपको आश्चर्य है कि रोड्स का क्या होता है। वहां भी गांवों में खासों से नहीं होते कि जिस रास्ते से ऊंची जाति के लोग आना जाना करेंगे उस रास्ते से ये दलित नहीं जा सकते थे। प्रैक्टिस तो ये भी थी कि कोई दलित अगर किसी ऊंची जाति के सामने, खासतौर से जमींदारों के सामने अगर पहुंच जाए, उसके सामने उपस्थित होगा, तो वो चमड़े की चप्पल नहीं पहन सकता है, और अगर है तो वो चप्पल को अपने सर पे रखेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण थे। अगर किसी दलित की शादी होगी तो वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, बैंड बाजा नहीं बज सकता। अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में सूचना आई थी
कि एक गांव में एक दलित बंदे को शादी करनी थी, उसे गोली चलनी थी, बैंड बजानी थी, तो समाज में ऊंची जातियों के डर के कारण वो नहीं कर पा रहा था, तो उसने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। पुलिस की मौजूदगी में वो बंदा घोड़ी चढ़ा, वो बंदा बारात लेके चलता है और बैंड बाजे के साथ। ये आप समझ सकते हैं, आज भी इस प्रकार की घटनाएं यदाकदा आ जाती है। तो उस समय की परिस्थितियां कितनी गंभीर नहीं होती, आप समझ सकते हैं। अब खुद तय कीजिए, क्या ये अमानवीय नहीं है? अनटचेबिलिटी मानव को मानव से अलग करती है। और गांधी ने इसी कोर इश्यू को टच किया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो अपनी ताकत को आजादी की लड़ाई में नहीं लड़ा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सताया गया है। तो गांधी है ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, और इन्होंने, गांधी ने अपर कास्ट के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की अपने प्रयासों से कि आप दलितों को अपने बराबर माने, उनके लिए अपने हृदय के द्वार खोले। इस पाप नुमा सोच को, इस पाप नुमा जो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की, उसको आप दूर करें। ये गांधी के प्रयास है, व्यक्तिगत प्रयास, और गांधी इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। तो बच्चों, यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही होंगे कि गांधी के एफर्ट्स क्या थे दलितों के हितों को प्रमोट करने। और एक चीज उदाहरण देखिए, गांधी वाज अ मैन ऑफ प्रैक्टिस। गांधी जो कहते थे पहले खुद करते थे। गांधी ने कहा कि भाई अपना पाखाना खुद साफ करो, अपने टॉयलेट को खुद क्लीन करो। उस समय इस काम को करने के लिए भंगी होते थे, इसको कहते हैं हम लोग स्वीपर्स, और ठेठ भाषा में कहते हैं उसको बेहतर। तो गांधी ने जब अपनी साबरमती आश्रम बनाई तो वहां के नियम थे कि हर मेंबर को अपनी टॉयलेट खुद साफ करनी पड़ेगी, और गांधी ने ये किया। गांधी जब जेल में थे तो भी वहां पे उन्होंने खुद से अपनी टॉयलेट क्लीन की, और ये देख करके वहां जो स्वीपर था उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। कहानी कुछ इस तरीके से, गांधी जब जेल में थे तो उस जेल में एक स्वीपर हुआ करता था जो उसका काम था गांधी के उस रूम की साफ सफाई करना। वो स्वीपर जब भी जाता था तो टॉयलेट बिल्कुल क्लीन होती थी। He was very much amazed कि ऐसा कैसे। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस टॉयलेट की बात कर रहा हूं वो आज का टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट नहीं होता था, वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट होता था। और इंडियन में भी उस समय सेप्टिक टैंक का कोई प्रोविजन नहीं था। बात समझिए। आप बोलेंगे टॉयलेट क्लीन में क्या है सर, हम लोग भी जाते हैं, फ्लश लगा दिए, बात खत्म। नो, वहां पे मैनुअल स्कैवेंजेस करनी थी, सफाई करनी थी। तो वो बार बार भंगी देखता था कि वो टॉयलेट क्लीन है। एक रात वो छिप गए चुपचाप, कि वो देखना था कि वास्तव में टॉयलेट क्लीन करता हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग उसने देखा, बिल्कुल सुबह होने को थी उसी समय, कि गांधी टॉयलेट जाते हैं और खुद से टॉयलेट को क्लीन करते हैं। गांधी तो जेल में भी वो कर रहे थे। साबरमती आश्रम बनाया तो वहां पे उन्होंने इसको अनिवार्य कर दिया। इस मुद्दे पे ये कहा जाता है, ये रिकॉर्डेड है कि इस मुद्दे पे उनकी बा से भी मतभेद हुए। बा ने कहा कि इस उम्र में मैं ये काम करूंगी। बा यानी आई एम टॉकिंग अबाउट कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी। गांधी ने बड़ी ही कठोरता से कहा कि जिसे भी आश्रम में रहना होगा उसे इस नियम का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा उसे आश्रम से बाहर जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, तो गांधी द मैन ऑफ डीड्स, ये गांधी की विशेषता है। गांधी आज के नेताओं की उस जमात की तरह नहीं है जो कहते कुछ है करते कुछ है। गांधी जो कहते थे पहले खुद करके दिखाते थे। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गांधी। यही चीज गांधी को बाकी नेताओं से अलग करती है, और यही वो तत्व है जो गांधी को महामानव के रूप में, महानायक के रूप में खड़ा करता है। तो बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रयास थे गांधी के। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 3 मार्क्स के लिए। ये महत्वपूर्ण चीज है।